Good morning, students. Last class we have completed about the male reproductive system and the accessory glands and external genitalia. Today we have to discuss about female reproductive system. It consists of primary sex organs, that is a pair of ovaries, and secondary sex organs like accessory ducts, accessory glands, mammary glands, and external genitalia. So we have to study about first ovaries, and then accessory ducts are there, accessory glands, mammary glands, and external genitalia. So first we are studying about the ovaries. Here ovaries produce female gametes called the ova. In plural it is ova, in singular it is ovum, and secrete the female sex hormones, estrogen and progesterone. Next one, these are located one on each side of the lower abdomen. So here in the lower abdomen, both the sides ovaries are present here. These are almond shaped, almond की तरह दिखने में है, 2 to 4 centimeter in length and 1.5 centimeter in width. Okay. Next we are coming for each ovary is connected to the pelvic wall, मतलब पीछे जो wall रहता है पीछे या सामने, that is called pelvic wall, by the broad ligament, and ovaries are connected with the which one? ना uterus. ये जो uterus के साथ ovaries connection किसके through होता है ना? They are by ovarian ligament. Look at that. This is ovarian ligament and these are broad ligament by which the ovaries can connect it with the pelvic wall, and by ovarian ligament they are connected with uterine wall. This is uterus actually, so that's why it is called uterine wall. Next one we are coming. Each ovary is covered by the thin epithelium which called or which encloses ovarian stroma. ये जो ovarian stroma है that is actually ovarian epithelium से covered up हो जाता है जो membrane. Ovarian stroma is divided into two regions. What are the regions here? One is peripheral cortex and inner medulla. तो बाहर की तरफ जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड अंदर की तरफ उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं. दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ovaries. Next one we are coming for which one? Accessory ducts. So in the ducts will be coming there. Now fallopian tube will be coming there. Accessory ducts. So first we are coming accessory ducts, oviducts. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Fallopian tube. These two are actually fallopian tube, and their end portion is called actually the infundibulum. थोड़ा wider portion है उसको हम लोग infundibulum बोलेंगे. Infundibulum is ended with which one? Finger-like projections. That is called fimbri. And this is actually the ampulla portion, that is the narrow portion, and then it is coming with the ending with the isthmus. By the isthmus they are actually connecting with which one? Uterus. Okay, so now it is coming, the part of the oviduct close to the ovary is funnel shaped. ये जो है ovary के नियर बाय जो पोर्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? funnel shaped. उसको हम बोलते हैं infundibulum. This is known as infundibulum. The edges of infundibulum causes finger-like projections, that is called fimbri, which help in the collection of the ovum after ovulation. यहाँ से ovum जो production हो रहा है that is collected by fimbri. The infundibulum leads to wider part that is actually called the ampulla, and isthmus is the last part of the oviduct which has a narrow lumen and it joins with the uterus. तो ठीक है, जो accessory duct है उसमें क्या आगे? Now it is coming about the wider part that is called infundibulum, then ampulla is coming, then isthmus, and isthmus is connected with the uterine part, and infundibulum, that is funnel shaped structure, that is actually ended with a fimbri or finger like projections. Next we are coming uterus. It is inverted pear shaped structure. It's a pear shaped muscular organ about 75 centimeter long and 5 centimeter wide. The length is 75 centimeter and wide is 5 centimeter here. It is attached to the pelvic wall and supported by the same condition, ligament, wider ligament, broad ligament से connected है. Wall of uterus has 3 layers of tissues, that is perimetrium, myometrium and endometrium. So here it is coming perimetrium, end one or outer one, myometrium is middle one, and endometrium. Okay. The innermost glandular layer lies in the uterine cavity, है ना? ये जो glandular है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? uterine cavity बोलते हैं, और last layer is the endometrial layer. Uterus opening to vagina, this portion is called vagina, this portion is called cervix, and this is called cervical canal, है ना? ये canal को हम क्या बोलेंगे? cervical canal. This is called cervix here.
The uterus opening to vagina through cervical canal. Okay, it is also called the birth canal because the child is taking birth through this canal. And uterus opens into vagina through a narrow cervix. Its cavity is called the cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. ठीक है. Endometrium, द लेयर अंडरगो साइक्लिक चेंजेस. ये जो अंदर की तरफ जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम. किसके लेयर है? यूट्रस के लेयर है. दैट इज एक्चुअली अंडरगोइंग साइक्लिक चेंजेस इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. और मायोमेट्रियम के काम क्या है ना? एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ दे आर हेल्पिंग, है ना. तो दैट इज अ मायोमेट्रियम. इट इज एक्चुअली स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द पार्ट्यूशन. पार्ट्यूशन मीन्स दैट इज द चाइल्ड बर्थ टू डिलीवर द बेबी. अच्छा, वेजाइना, दिस इज द लास्ट कैनल. इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ओपन्स टू द आउटसाइड. इसके थ्रू आउटसाइड आता है जो सेक्स सेल्स और गैमेट्स. इट रिसीव्स द स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन and serves as the birth canal. तो इसके थ्रू sperms are also received, that is called spermatozoa, and it is also using as a birth canal also. अच्छा, next one is coming about the female external. ये तो हो गया total that is coming about the accessory ducts, accessory glands, which is these are present here. And next one we are coming about the female external genitalia. So external genitalia, we are coming from the outside to inside. And the outside first part, what is the first part here? Mons pubis. It is the cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The outermost part is called mons pubis. Second one is coming about the labia majora, fleshy pads tissue or fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surrounded by vaginal opening. ठीक है, तो लैबिया मेजरा जस्ट मॉन्स पीविस के नीचे ही है और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखते हैं. इट इज अ मस्क्यूलर टिश्यू, फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू. लैबिया माइनोरा जस्ट उसके नीचे, एट पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लैबिया मेजरा. हाइमेन क्या होता है? मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. ये जो वेजाइना का ओपनिंग उसको कवर अप करके कौन रखते हैं? हाइमेन. पार्शियली इट गेट्स रैप्चर ड्यूरिंग द विगोरस फिजिकल एक्टिविटीज और ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस. बहुत एक्टिविटीज़ होगा तो ये वेजाइनल जो है हाइमेन जो है इट कैन बी टॉर्न और रप्चर. इसके बाद क्लाइटोरिस. इट इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. So one just outermost I am showing that one. देखो, so ये हो गया आपकी यूट्रस, है ना. ये आपको साइड व्यू हम दिखा रहे. तो यहाँ पे जो फ्रंट व्यू, ये है फ्रंट व्यू वाला स्ट्रक्चर है. इसमें ओवरी है, इन्फांडिबुलम, एम्पुला, इस्थमास एंड यूट्रस एंड सर्विक्स एंड वेजाइना. अभी यहाँ पे क्या है? साइड से व्यू को आप यूट्रस है. यूट्रस के बाद ये है यूरिनरी ब्लैडर, तो छोड़ो. इसके बाद ये है कि आपके कैनल जो है जिसके थ्रू क्या होता है ना, वेजाइनल में सर्विक्स एंड वेजाइना, इसके वेजाइना के थ्रू ओपनिंग हो जाता है. ठीक है, जिसको हम वेजाइनल ऑरिफिस बोल रहे हैं. तो नाउ वेजाइनल ऑरिफिस के एकदम आउटसाइड जो है मॉन्स प्यूबिस. इसके बाद ये देखो, ये है लैबिया मेजोरा, मीन्स फोल्डेड टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर outside just above the mons pubis, below the mons pubis. Then below the mons labia majora and labia minora is there, and labia minora के बाद ही कौन आएगा? हाइमेन, मीन्स कवरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं. इसके यूरेथ्रल जेनिटल जो ओपनिंग होता है उसमें जो, और कैसे वेजाइनल जो ओपनिंग होता है उसमें जो कवरिंग होता है. और ये है क्लाइटोरिस, दैट इज द एक्चुअली प्रेजेंट अपर ऑफ द लैबिया माइनोरा. ओके, एंड इट इज़ एक्चुअली अबव द दिस ओपनिंग ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट. तो ये है हुए आपकी एक्सटर्नल जेनिटलिया. ओके, मैमरी ग्लैंड्स. सो इन मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वैल्यूबल अमाउंट ऑफ फैट. ये दोनों रहता है. कौन कौन है? एक तो अमाउंट ऑफ फैट रहेगा और ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच मैमरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड द एल्वियोलाई. एक बार दिखाई देते हैं आप लोगों को. ये है फैट लेयर, है ना. और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैमरी ओव्यूल्स. तो ये ओव्यूल्स जो है दैट इज एक्चुअली मैमरी जो टिश्यूज़ है, ग्लैंडुलर टिश्यू. सो मैमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20, दैट इज कॉल्ड मैमरी लोब्स कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ना एल्वियोलाई. ठीक है, तो मैमरी ग्लैंड हो गया, मैमरी लोब हो गया, और उसके बाद मैमरी लोब के अंदर क्या होता है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू एल्वियोलाई. अभी एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई देन ओपन इनटू मैमरी ट्यूबुल्स, दैट ट्यूबुल्स ऑफ ईच लोब कंटेनिंग टू मैमरी डक्ट.
तो ये जो ट्यूबुल्स होता है देखो मेमोरी डक्ट है, और मेमोरी डक्ट के बाद लैक्टिसिफेरस डक्ट। तो ये मेमोरी डक्ट एम्पुलरी जिसको हम लोग बोलते हैं कि एल्वियोलाई ट्यूबुल एंड मेमोरी ट्यूबुल्स जिसको बोलते हैं, ट्यूबुल्स ऑफ ईच अगेन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, तो these are fat layers, upper and lower level, these are all called alveoli here. So now alveoli open into mammary tubules and the tubules of each lobe join to form the mammary duct, and the several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lacrimal duct through which milk is sucked out. तो ये हो गया alveoli. alveoli किसके अंदर आएगा alveoli ना, that is actually called the mammary जिसको बोलते हैं मेमोरी लोब जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली डिवाइड मेमोरी जो लोब्स होता है दैट इज कंटेनिंग एल्वियोलाई. एल्वियोलाई अगेन ओपन इन टू मेमोरी ट्यूबल्स टू मेमोरी डक्ट्स टू एम्प्यूला. ठीक है, ये जो स्वेलिंग जो एम्प्यूला है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एम्प्यूला का अगेन ओपनिंग इन टू लैक्टिसिफेरस डक्ट. फ्रॉम हियर द मिल्क्स आर सक्ड आउट. ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द गैमेटोजेनेसिस. यहाँ पे आपको दो चीज़ें पढ़ना है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis. तो विल बी स्टार्टिंग टुडे स्पर्मेटोजेनेसिस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड गैमेट्स germ cell in the gonads, that is sperms or ova, are produced in the testes and ovary respectively, and it is of following two types. तो यहाँ पे क्या हो गया ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल और फीमेल गैमेट्स, सिंपल सी बात है, फ्रॉम द दैट इज डिप्लॉइड germ cells in the gonads. ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस एंड ओवरी रेस्पेक्टिवली. तो टेस्टिस एंड ओवरी क्या है, दैट इज गोनाड्स, एंड गोनाड्स के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड germ cells. तो आइदर स्पर्म मदर सेल और ओवम मदर सेल से जो ओवम और स्पर्म की प्रोडक्शन. स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन टेस्टिस, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं. इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल germ cells, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, है ना. इमेच्योर मेल germ cells स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस that begins in the puberty. Spermatogonia, जिसको हम लोग present on the inside wall of the seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increase in number. ये जितना आपको spermatogonia दिख रही है, ये all are dividing by which one, mitosis cell division, increase in number only. This spermatogonium is diploid and contains 46 chromosome. Some of the spermatogonia are called primary spermatocyte. है ना. तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया किसके हिसाब से काम करते हैं ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के हिसाब से भी काम करते हैं, हिसाब से काम करते हैं, बट उसकी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 46. क्या नंबर, क्रोमोसोम 46. अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कौन है ना, स्पर्मेटोगोनिया की कुछ स्पर्मेटोगोनिया that is active in actually division and all, so they are actually considered as the primary spermatocytes, and primary spermatocytes undergo first meiotic division and leading to the two equal haploid, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की क्रोमोसोम नंबर क्या है, या प्लॉइडी नंबर क्या आएगा, प्लॉइडी क्या आएगा, 23. तो इसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की क्या है, 46. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज व्हिच वन ना, मियोसिस, फर्स्ट मियोटिक सेल डिविजन. तो इक्वल पार्ट्स में आ गए. तो अभी क्या है, आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स which contain only 23 chromosome each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce the 4 equal haploid spermatids which contain also again 23 chromosome. The spermatids are transformed into spermatozoa or sperms, है ना. जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, है ना. ये प्रोसेस थोड़ा सा याद रखना है कि स्पर्मेटोजोआ की कन्वर्शन किससे, स्पर्मेटोजोआ की कन्वर्शन दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. ईच स्पर्म कंटेन्स ओनली 23 क्रोमोसोम. ठीक है, स्पर्म सेल्स आर एम्बेडेड इन द Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन कुछ नहीं है, यही स्पर्म जो प्रोडक्शन हो रहे हैं स्पर्मियो, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं, यही स्पर्मेटोजोआ जब एम्बेडेड हो जाता है Sertoli cells and then it is getting the nutrition and release from which one, seminiferous tubules, that is called spermiation. तो ये जो बात है that is actually the inner side of seminiferous tubule. ये एक्चुअली जो राउंड वाला फिगर आपको शुरू में दिखाए थे मैंने, तो ये वाला, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के जो यहाँ पे जो जितने सारे आपको सेल दिख रहे हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनिया. ओके, एंड इसके स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम लोग आप बोल भी सकते हो कि
इमैच्योर स्टेज ऑफ व्हिच वन की स्पर्म मदर सेल। उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया में कुछ स्पर्मेटोगोनिया किसकी तरह काम करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो उसकी क्रोमोसोम नंबर क्या होना चाहिए, 46। अगेन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ इट इज़ डिवाइडेड बाय व्हिच, ना मियोसिस, एंड मियोसिस में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या हो जाएगा, फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या हो जाएगा ना, स्पर्मेटिड्स, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स से क्या फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ, दैट इज कॉल्ड स्पर्म्स, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अभी ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स आर एम्बेडेड इन सर्कुलर सेल एंड रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट प्रक्रिया आपको दे के रखा है। स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस सेल डिवीजन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो इसका भी क्रोमोसोम नंबर 46, इसका भी 46। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज कॉल्ड 23 क्रोमोसोम नंबर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में स्पर्मेटिड दैट इज ऑल्सो 23। स्पर्मेटिड बाय डिफरेंशिएशन दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस इनटू स्पर्मेटोजोआ दैट इज ऑल्सो 23। अभी स्पर्मेटोजोआ क्या हो जाएगा ना, दे आर एक्चुअली एम्बेडेड इनटू सर्कुलर सेल्स एंड रिलीज्ड एज स्पर्म, that is called spermiation process, release from seminiferous tubule। अच्छा, दिस इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी वही रिप्रेजेंटेशन आपको दे के रखा है कि स्पर्मेटोगोनिया है ना, जैसे तरह डिवाइडिंग बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की सबसे काम करी, फिर मियोटिक सेल डिवीजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी इसके बाद स्पर्मेटिड आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फिर स्पर्मेटोजोआ। Okay, next one we are coming the role of hormones in spermatogenesis. तो spermatogenesis starts during puberty with the significant increase of hypothalamic hormone। क्या नाम है उसकी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, है ना। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, the increased level of GnRH acts on the anterior pituitary gland and stimulates the secretion of two gonadotropins। गोनाडोट्रोपिन मतलब हार्मोन्स इसको बोलते हैं। One is luteinizing hormone or LH, another is FSH, the follicle stimulating hormone। ठीक है, तो LH acts on Leydig cell and stimulates the synthesis and secretion of androgens, which in turn stimulate the process of spermatogenesis, and FSH act on Sertoli cells and stimulates the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis, process of actually nutrition also they are प्रोवाइडिंग। सो यहाँ पे आप देख लो LH, यहाँ पे फर्स्ट हाइपोथैलेमस, तो सिक्रेशन क्या हो रहा है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे GnRH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये एक्टिवेट करते हैं। तो दो हार्मोन सिक्रेट होता है, एक तो इसको गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स। एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा ना, लेडिग सेल के ऊपर, और क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन, दैट इज अ stimulating hormone, that is male stimulating hormone, and they are actually working on androgen receptor, and they are helping in their spermatogenesis. In case of FSH also it is working on Sertoli cell। Sertoli cell also spermatogenesis को काम करते हैं, और साथ ही साथ spermiogenesis मतलब जो conversion जो process, that is actually spermiogenesis में बोल के रखा है कि that is called actually conversion of the spermatid to spermatozoa। ओके, सो दैट प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर द दिस आर एक्चुअली कॉल्ड हार्मोनल कंट्रोल, एंड लास्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। चार कंपोनेंट होते हैं चार स्ट्रक्चर में, एक तो हेड है, उसके बाद नेक है, इसके बाद मिडिल पीस है, और उसके बाद टेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन encloses the whole part of the sperm, and the head contains an elongated haploid nucleus, the interior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome। देखो ये है head like structure, then neck है, then middle piece, then tail, ये चार पोर्शन हैं आपके पास। तो ये हेड पोर्शन में क्या रहता है, न्यूक्लियस एक रहता है, और न्यूक्लियस भी इट इज़ एक्चुअली कवर्ड बाय द अनदर कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। एक्रोजोम में क्या होता है ना, एंजाइम है ना, जो एंजाइम फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, दैट एंजाइम इज प्रेजेंट इन दिस एक्रोजोम। अच्छा, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द नेक पोर्शन, दिस इज द मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या रहेगा ना, नेक कॉन्टेन टू सेंट्रियोल्स, नेक में दो सेंट्रियोल रहता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो नियर बाई सेंट्रियोल होता है, विच इज नेसेसरी फॉर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट,
एंड अ डिस्टल सेंट्रियोल दैट गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ द टेल। ये जो टेल की एक्सियल फिलामेंट एक्सिस की तरह रहता है इस बीच में, ये एक्सियल फिलामेंट को गिव राइज कौन करता है? डिस्टल। दो सेंट्रियोल, ये नेक पोर्शन में दो सेंट्रियोल रहता है, जिस सेंट्रियोल की जो प्रॉक्सिमल वाला मतलब पास वाला जो सेंट्रियोल है, ये क्या करेगा ना, क्लीवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट। ये नेसेसरी फॉर द जाइगोट बनने के बाद जो क्लीवेज डिवीजन होगा उसके लिए नेक पोर्शन की फर्स्ट जो प्रॉक्सिमल वाला ये काम करता है। सेकेंड जो डिस्टल वाला है, दे आर वर्किंग फॉर विच वन? एक्सियल फिलामेंट, डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल फिलामेंट ऑफ द टेल। मिडिल पीस के पास क्या है? पॉजेस मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता ही है जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी को किसको प्रोवाइड करते हैं ना? स्पर्म को, टू स्विम, है ना, टू स्विमिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो मिडिल पीस पॉजेस मेनी माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल टू फैसिलिटेट स्पर्म की मोटेलिटी जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, टेल ऑफ द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ एन, ये जो एक्सियल फिलामेंट, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म inside the female reproductive tract and towards the ovum for fertilization, ठीक है। So today up to this structure of sperm and spermatogenesis process and the hormonal control as well as the female reproductive organ, okay।